as we continue to meditate from the book of Malachi. सभी को संध्याकालीन नमस्कार। आज हम सभी लोग परमेश्वर का वचन का मलाकी उसका तीसरा अध्याय में हम लोग मनन करने में जो समय दिया, प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। It's always a pleasure to be with you. So I expect, God willing, to conclude the study on the book of Malachi between today and next Sunday. आज नहीं तो अगले इतवार को प्रभु का इच्छा होगा तो मैं मलाकी का पुस्तक को मैं समाप्त करूंगा। And when I took up the study, I didn't intend to get it prolonged so long. I thought with 4 classes we should be done because you got 4 chapters. मैंने सोचा था कि जब मलाकी का पुस्तक शुरुआत किया उस समय केवल 4 क्लास में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि केवल 4 अध्याय है मलाकी का पुस्तक। But I think by the time we dwelt into it and went into the details, and I was led to share a little more, so it got prolonged. थोड़ा बहुत हम लोग जब उसका विस्तार रीति से सीखने की कोशिश किया और थोड़ा कुछ मुझे एक्स्ट्रा जो क्लास मिला था उसमें डिस्कशन करने में, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा समय लग गया। So I wish to thank Ranjit and BDTI and the Gwalior Assembly for allowing me to share the word of God. परमेश्वर का वचन को बांटने के लिए जो ग्वालियर असेंबली और बीटीआई जो मुझे मौका दिया, मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ। All right. I think it's the first time you're translating for me, Ranjit, and I hope I'll be able to keep up with your speed and all that. Okay, now let me share my screen and then I will start. Uncle makes good presentation. Oh yeah, thank you very much. I have to bring in variety, no? I want to be sure that it is very different every time, and that's the reason. I'm not very good. I'm not very good in presentation. All that little I know, I'm doing it here. That's all. So thank you for your kind comment. Appreciate that. All right, now why I termed this as nuggets from the Malachi because it's the last 2 studies today and next week. और आज और अगले इतवार को जो समाप्त होने वाला है, इसीलिए मैं उसका नाम समाप्ति का क्लास जो दिया है। All right, so I call it nuggets. Nuggets means precious learnings or precious stones or precious items that you can pick up from the book of Malachi. और मलाकी का पुस्तक का सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे कीमती चीजें जो कि हम लोग ले सकते हैं, इसलिए मैं उसका नाम नगेट व अति बहुमूल्य का जो अंश व नाम दिया है। Yeah, that's right. So we will quickly cover a few aspects of chapter 3 today. आज हम लोग जल्दी से जल्दी तीसरा मलाकी का तीसरा अध्याय का जो सारांश का और थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। And next week, God willing, from Malachi chapter 4. और प्रभु का इच्छा होगा तो आखिरी जो 4 अध्याय का हम लोग देख के समाप्त करेंगे। Yeah. And last Monday, when I took the class, we studied the first 6 verses of Malachi chapter 3. और पिछले हफ्ता जब हम लोग मनन कर रहे थे, तीसरा अध्याय 1 से लेके 6 पद तक हमने अध्ययन किया था। All right, and then does anyone remember what was the subject I handled? I know I'm sure you're handling it classes every day, but I'm a little curious to know if you remember what we studied last Monday. आप लोग में से कोई अगर याद किया है तो थोड़ा सा बता सकते हैं कि पिछले हफ्ता 1 से लेके 6 पद तक हमने कौन सा बारे में मनन किया था। अगर कोई जानते हैं तो थोड़ा सा बता सकते तो मुझे बहुत एक आकांक्षा हो रहा है कि आप लोग का मुंह से सुनने के लिए। I hope I'm not embarrassing you by asking you this question. मैं आप लोग ये प्रश्न पूछ करके आपको कोई मैं दुख नहीं दे रहा हूँ। So does anyone remember last कोई भी भाई या बहन याद किया है कि याद करते हैं कौन सा बारे में हमने चर्चा किया था? It's a very important subject I felt, and something that we all are going through, or we might have gone through, or will go through at any point in time. हम लोग कभी-कभी इस संदर्भ में गया होगा और जाते होंगे या आने वाला समय में जाएंगे भी हो, तो
ये जो बारे में है हमने सीखा था। All right, doesn't matter if you don't remember that, but I thought I will brush up a few points of my last study because I felt it is important. मैंने ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए सोच करके आप लोग को पूछ रहा हूँ और मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा एक संक्षिप्त में बता करके मैं आगे बढ़ता हूँ। So, to start with and to refresh your memories, let's read from Malachi chapter 3, and let's read, I think it's verse 2 or 3. Let me pick up my Bible. All right. Now, so chapter 3, I think it is, we will just stand with this, okay. All right, chapter 3 and verse 2. तीसरा अध्याय दूसरा पद। तीसरा अध्याय दूसरा पद कोई भाई पढ़ सकते हैं? तो मैं परंतु उसके आने के दिन कौन कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी की साबुन के समान है। So now do you remember what subject I handled last Monday? पिछले हफ्ता में कौन सा बारे में आप लोग को सिखाया तो याद है? सोने को किस प्रकार से गर्म किया जाता है, उसको मार करके कितना जो शुद्धिकरण किया जाता है, उसका बारे में पिछले हफ्ता मेरा ख्याल से अंकल। Yeah, the refiner's Yeah. fire. The refiner's fire is what we studied last time, is it not? यस यस यस। सो All पिछले right. बार हम लोग जो सोना को जो धधकती हुई आग में लेकर के उसको शुद्धिकरण किया जाता था। All right, so I thought I'll brush up a few things before we continue our study from verses 6 downwards. और 6 से आगे जाने से पहले मैं थोड़ा सा संक्षिप्त आप लोग को बताना चाहता हूँ। Experiencing the refiner's fire. Refiner is the Lord Jesus Christ. The fire is the trials that come our way. और जो प्रभु यीशु मसीह का जो साथ जो संबंध व जो उसका अनुभव जो आने वाला समय में हमारा जो मसीह जीवन का यात्रा में जो पीड़ा व जो कष्ट आता है उसका अनुभव करना। So experiencing the refiner's fire is very, very difficult. और हमारा मसीह जीवन का जो समय में आते समय जो आग का जो अनुभव से गुजरना ये बहुत मुश्किल की बात है। But it is very important in our life to undergo that refining process. ये बहुत कष्ट है, लेकिन ये उसका हो करके जाना एक जरूरी भी है। All right. And under this process, it is our flesh that is put into control or is subdued. तो इस परिस्थिति से गुजरते हैं तब हम लोगों को ये लगता है कि हम लोग ये क्यों हो रहा है, क्यों? जब हमारा शरीर में जब रहते हैं ये शरीर हमको कभी-कभी उसको अनुमति नहीं देता है। यस दी पुकारियो। All right. So the process of refining is to purify us, to make us holy, to make us come closer to God. दीपू आर यू देयर? ओके, ये शुद्धिकरण हम लोगों को शुद्धिकरण करता है और हमको पवित्र करता है। All right. So why is this process being done? Why is God allowing these trials in our lives? हमारा जीवन में ये सब ये समस्या व ये शुद्धिकरण क्यों लाता है? It is to fulfill His purpose in our lives, and so that His plan is executed in our life. It's for that purpose only. परमेश्वर का इच्छा हमारा जीवन में पूरा करने के लिए परमेश्वर ये सब कुछ हमारा जीवन में लाते हैं। Now, God is holy, as I said last time. मैं जैसा पहले से भी कहा था, पर परमेश्वर पवित्र है। And there's nothing which is unholy that can survive the fire of trial in our lives. और हमारा जीवन में जो अशुद्धता व अपवित्रता है, जो परमेश्वर का जो शुद्धिकरण का सामने वो कभी भी नहीं रह सकता है। And that is why through the fire of trial in our life, as a refiner, He's making us as good as pure gold. और जब परमेश्वर का जो रिफाइनरी व शुद्धिकरण का थ्रू जब हम जाते हैं, हम लोग को
इतना शुद्ध परमेश्वर करना चाहते हैं कि वो जो सोना से भी अति शुद्ध परमेश्वर हमारा जीवन को करना चाहते हैं। All right, so that is why he is called the refiner's fire. और इसीलिए परमेश्वर को कहा गया है कि परमेश्वर शुद्धिकरण का जो आग है वो कहा गया है, It's for our good. वो हमारा भलाई के लिए ही है। All right. And when we come out of that, we will all experience how good the Lord has been in keeping us through those fires and also in revealing more of himself and drawing us more nigh to him. और ये शुद्धिकरण के द्वारा जब हम लोग जाते हैं, परमेश्वर हम लोगों को उसका इच्छा को और ज्यादा से ज्यादा समझने के लिए हमको सहायता करता है, ताकि हम लोग उसका इच्छा को जान करके हमको एक पवित्र जीवन जी सके। All right. I mean, that is just a summary of what we discussed last time. और पिछले क्लास में हमने जो सीखा था उसका एक सारांश में आप लोग को बता रहा हूँ। All right. Now we will move on to the second half of that chapter, Malachi chapter 3, the second half. अभी हम लोग जो छठवां पद से आगे जो हम लोग पढ़ते हैं उसका जो दूसरा भाग है। And the important thing that we read there, the message there is about tithes and offerings. और उसका जो महत्वपूर्ण शिक्षा यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि दशमांश और जो बलिदान का बारे में लेकर के। From 6 to verse 12, when we read, we will find that the Lord is focusing more on tithes and offerings to the Judeans. और 6 पद से लेकर के 12 पद जो हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर जो यहूदा गोत्र को यहूदा देश का लोगों को बता रहे हैं कि जो उसका जो दशमांश है, बाप जो बलिदान जो बलि है, परमेश्वर को किस प्रकार से चढ़ाना है, उसके बारे में विवरण हम लोग देखते हैं। And this has a relevance to us as believers today. और आज का जो विश्वासी होने के नाते हमें हमारे लिए भी ये कार्यरत हम लोग की भी एक सिखाता है। I'm sure the Lord will teach us some important lessons even today. और आज भी परमेश्वर आज का जो शिक्षा के द्वारा हम लोग को कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा हमको सिखाना चाहते हैं। When we think of money and materials, all what we have has been given by God. और जब हम लोग पैसा या संपत्ति के बारे में हम लोग जो सोचते हैं, ये सब कुछ परमेश्वर को दिया हुआ दान है। Yes, he has given us these financial resources for our benefit and he controls everything. और हम लोगों को ये सब कुछ जो परमेश्वर जो दिया है, उनको हमारा भलाई के लिए दिया है और सब कुछ उसका नियंत्रण है। Some of us have more, some of us have less. कभी-कभी किसी-किसी लोगों के पास ज्यादा पैसा है या संपत्ति है, किसी-किसी के पास कम है। But ultimately, for all of us, it is money. और ये सब कुछ परमेश्वर चाहे थोड़ा दिया हो, ज्यादा दिया हो, ये सब कुछ परमेश्वर का महिमा के लिए होना है। And when anyone takes away that money from us, it resorts to stealing, isn't it? और कोई भी व्यक्ति वो दिया हुआ दान को अगर वो लेके चला जाता है, वो एक प्रकार परमेश्वर का जो चीज को चोरी किया जैसा है। All right. And if anyone steals it from us, what is proper? It is proper that they return it back to us, is it not? और जो कुछ भी हम लोग वहां से लेते हैं उसको वापस करना हमारा कर्तव्य भी है। All right. So we're going to meditate from Malachi 3 verses 6 to 12 and understand more what the Lord has for us from these verses. और 6 से लेकर के 12 पद तो मलाकी का पुस्तक उसका विवरण विस्तारित से हम लोग आइए हम सीखते हैं। All right. So if someone can help in reading from verses 6 to 12, it will be helpful. कोई भी भाई 6 से 12 तक कोई पढ़ के हमको मदद कर सकते हैं। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी साप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। सारे दशमांश भंडार
भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। All right, thank you, thank you. The caption in my English Bible in one of the versions says robbing God. The caption for these 7 verses. और ये 7 पद में हम लोग उसका एक हेडिंग हमको दिया गया है कि परमेश्वर का घर व परमेश्वर का जो चीजों को चोरी करना। All right, all the resources that we have, it is our time, it is our talents and our treasures, they belong to the Lord. चाहे समय हो, चाहे वरदान हो, चाहे धन हो, चाहे दशमांश हो, जो भी परमेश्वर का चीज हम लोग सही उपयोग नहीं करते हो, परमेश्वर का वो धन को हम चोरी करते हैं। The scripture and this portion that we read again and again keeps emphasizing that God is the owner of all this and it is given to us so that we can enjoy it. ये सारे जो दिखाई गया है, ये सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ दान है। हम लोग ये सब कुछ हम लोग परमेश्वर का महिमा के लिए हम लोग उपयोग करके हम लोग उसको उपयोग कर सकते हैं। All right. Now what do we read in Psalm? Can someone read Psalm 89 and verse 11? कोई भी भाई भजन संहिता 89 के 11 पद जरा कोई पढ़ सकते हैं? Psalm 89 11. कितना सब? 89 के 11 पद। Psalm 89 verse 11. आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरा है, जगत और जो कुछ उसमें है, उससे तू ही ने स्थिर किया है। You created it all. That's what the psalmist is saying about the Lord. और भजनकार परमेश्वर को कहता है, परमेश्वर यह सब कुछ तू ही सृष्टि किया है। So if the heaven is yours and the earth is yours and everything in the world is yours, God, all that we have it has been given to us. और हे परमेश्वर, आकाश आपका है, ये पृथ्वी आपका है, इस संसार में जो कुछ भी वस्तु आपका है और जो कुछ भी हमारा पास है, प्रभु ये आपका ही है। So if everything has been given to us, who are we? और परमेश्वर आपने जो कुछ भी दिया गया है हमको, हम कौन है प्रभु? We are stewards who have been entrusted with everything God owns in this world. और परमेश्वर ने जो कुछ भी हमको दिया है, हम लोग परमेश्वर का भंडारघरिया है, हम उसको सही रीति से उसको रखना चाहिए। All right, so from this passage, we are going to understand what the Bible has to say about the possessions and money which God has given us. जो स्थान और पैसा जो परमेश्वर देते हैं, परमेश्वर उसका बारे में क्या कहते हैं? आइए परमेश्वर का वचन से देखते हैं। Yeah, in this reference, Malachi is writing to the Judeans, or those who returned from exile in Babylon. He's reminding them of something very, very, very important. और जो यहूदा में जो लोग थे, वहां पे जो बाबिलोन से लोग आए थे, उन लोगों को परमेश्वर का दास ये याद दिलाता है, बहुत महत्वपूर्ण बात। All right, now he's reminding them of a few things here. कुछ महत्वपूर्ण बात उन लोगों को याद दिलाते हैं। He's saying that God has established all these statutes or orders or these commandments relating to tithes and offerings. परमेश्वर ये सारे विधियां, परमेश्वर ने जो दिया वचन का सारे विधियां, ये सब कुछ परमेश्वर का नियमानुसार रखा है। And he's pointing out that they have failed in what God had laid down for them to do. और परमेश्वर ने जो इन लोगों को जो आज्ञा दिया है करने के लिए, और ये इस्राएल लोग, बात खासकर यहूदा का जो पहाड़ी का लोग, ये लोग उसका परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया है।
So Malachi is reminding the Judeans and saying that everything that you have belongs to him, and God is demanding that from you. और आप लोगों के पास जो कुछ भी है ये परमेश्वर का है, और परमेश्वर आप लोगों को बता रहे हैं कि ये मेरा है बोल के आप लोग मानो उसको। And he's also reminding them about their present condition. One side he's saying God is demanding of all these things as he has laid down. Second, what is your existing condition now? He's showing it to the Judeans. और जो यहूदा का लोगों को बता रहे हैं परमेश्वर का था, परमेश्वर इनको बता रहे हैं कि ये जो कुछ भी है वो परमेश्वर का है, और आपका जो परिस्थिति अभी का जो स्थिति को और वहां उनको याद दिला रहे हैं। So what were the people of God, the chosen people of God, what were they doing during Malachi's time with the wealth and money God has given them? और परमेश्वर का चुने हुए लोग, परमेश्वर का जो दिया हुआ पैसा, परमेश्वर का दिया जो सारे चीजें आप लोग परमेश्वर के लिए किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हो? They were taking it, they were keeping it, and they were consuming it all for themselves. Yes, sir. Once again. They were taking it, they were keeping it, and they were consuming it for all themselves. और वो लोग ले रहे हैं, वो लोग सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो लोग अपना 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 मर्जी के लिए इस्तेमाल को। And this is not going, yes, and this is not going to fulfill what God has designed for them. और जो कुछ भी वो लोग कर रहे हैं वो अपना अपना मर्जी के लिए कर रहे हैं। That is why the Lord was talking to them and saying that you are robbing me. और इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं तुम लोग परमेश्वर का भंडार का चीज का तुम लोग चोरी कर रहे हो। All right, brothers and sisters, God is showing them that the true blessing lies in losing their hold on what they have to give to God. और जो परमेश्वर को देना चाहिए था वो नहीं दे करके जो तुम्हारे पास एक छेद है वहां से निकल जा रहा है। All right, so let me say that again. What the Lord was telling them is true blessing lies in what they have to give to the Lord and not to keep back to themselves. और मैं दूसरे शब्द में ये कहना चाहता हूं कि जो परमेश्वर को देना है वो परमेश्वर को देना चाहिए, वो अपना पास नहीं रखना चाहिए। Brothers and sisters, we are stewards of every blessing that God has given us, the money, the wealth that he has, and the talents that he has given us. प्रिय भाई और बहनों, जो परमेश्वर ने हमको जो कुछ भी दिया, चाहे पैसा हो, चाहे समय हो, चाहे जो वरदान हो, जो कुछ भी दिया है, हम लोग परमेश्वर का जो रखवाला करने वाला जो भंडार घरिया है। All right, through Malachi, God is speaking to his people, and through Malachi, God is speaking to you and me this evening. मलाखी के द्वारा परमेश्वर का लोगों को परमेश्वर ने बात किया, मलाखी के द्वारा आज परमेश्वर ने आपको और मुझे बात कर रहे हैं। All right, let's read verse 7, chapter 3 of Malachi in verse 7. आइए हम लोग 7 पद पढ़ेंगे। मलाखी उसका 3रा अध्याय 7 पद। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे। All right, now there is one word that is used at least twice in my Bible version. It says return. Now return to me and I will return to you. और इंग्लिश बाइबल में, हिंदी बाइबल में भी है कि मेरे और फिरो, तुम फिरो और मैं तुम्हारा और फिरूंगा। And then the people ask, how can we return to thee? और लोग पूछ रहे हैं कि हम लोग कैसा फिरेंगे। So here the Lord is reminding them of God knows their condition. Now he's saying what you must do. और परमेश्वर इन लोगों का परिस्थिति को जानते हैं, वो लोग कैसा करना चाहिए। And the Lord is giving them 3 conditions or 3 reasons why they have to return. और परमेश्वर 3 कारण बताते हैं कि किस प्रकार वो लोग मन परिवर्तन करके प्रभु का और फिरना चाहिए। The first one is to repent because of the gospel of God, of God's generosity through the gospel, returning to salvation. और मन फिराना मतलब ये है कि सुसमाचार पर विश्वास करके प्रभु का और फिरना है। So the first one is you have to return to God because that is the plan of salvation for you. और आपको परमेश्वर को और फिरना है क्योंकि ये परमेश्वर का इच्छा है, मर्जी है
कि प्रभु का पास हमको आना है। And the second is they have to return because of their rebellious robbery of God. और उन लोगों का जो परमेश्वर का भंडार को चोरी करते हैं, इसीलिए वो लोग परमेश्वर का और मन परिवर्तन करके फिरना है। And the third thing God is saying, you got to return because I have promised you well-being, prosperity. और तुमको इसीलिए मन परिवर्तन करना है क्योंकि मैं तुम लोगों को संपत्ति से आशीष करूंगा, बल्कि तुमको जो वादा किया है, इसीलिए तुम फिरना है प्रभु का। All right, I want to focus a little on these two aspects because the gospel generosity we all know, but I'm going to focus a little about the rebellious robbery and the promise of prosperity before we move on. और आगे हम लोग बढ़ने से पहले जो परमेश्वर का जो विरुद्धाचरण करके चोरी करते हैं और जो परमेश्वर ने जो वाचा बांध के कहा है मैं तुमको आशीष करूंगा, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ध्यान देकर आपको बताना As per now, look, talking about the rebellious robbery, but God said, you have robbed me. As per the law of Moses, God had instituted certain laws about what and how much they must give to God. परमेश्वर ने कुछ नियमावली मूसा के द्वारा दिया है, कुछ विधि दिया है कि वो लोग किस प्रकार कौन से किस प्रकार वो लोग परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना है। This is called tithing. और परमेश्वर ने कहा है कि मुझे दशमांश देना है। Why have they been asked to tithe? What is the reason for tithing? और इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने कहा तुमको दशमांश देना, क्यों वो लोग दशमांश देना चाहिए? It is to show to show by whatever God has given them that God has been great and merciful towards them. It is to show that. परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर ने जो कुछ भी दिया है, परमेश्वर का धन्यवाद ही के साथ वो दशमांश पुराना नियम में कहा गया। And tithing is important so that it is a way of acknowledging that all that you have given to me, like a steward, I have to take care. और जो तुमने मुझे दिया है वो सब कुछ तुमने मुझे दिया है, उसको मेरे लिए वो उसको स्टोर किया गया है। Yes, we are just custodians of every blessing physically, which is materially and monetary wise that he has given us. We are just custodians of that. और हम लोग केवल एक रखवाले लोग हैं। No, what does that mean? It means that we don't own these things. It is God who has been gracious and faithful in giving it to us. We don't own that. और जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर दयालु परमेश्वर हमको दान दिया है, वो हमारा नहीं है। And so by giving tithe, they are constantly being reminded that this belongs to God, and so I have to do. That is why God instituted the tithe. और परमेश्वर ने इसीलिए ये व्यवस्था ये नियम परमेश्वर ने दिया है क्योंकि ये हमारा नहीं है, परमेश्वर का, बल्कि परमेश्वर को देना चाहिए। All right, now the law of Moses typifies three kinds of tithes, broadly three kinds of tithes. और मूसा का जो नियम तीन प्रकार का जो दशमांश के बारे में बताया गया है। The first of all is 10% to be given to the ministry of the priests or the Levites. और जो लेवी गोत्र को वो लोग कम से कम, बाकी गोत्र लोग 10 उनका जो उपज में से 10 भाग वो लोग लेवी को गोत्र को देना चाहिए। Why the Levites specifically? Why not the other tribes? और केवल लेवी गोत्र को क्यों दिया जाना, बाकी गोत्र को क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? Because the Levites were the only ones from the 12 tribes who were not allotted any land when the Israelites went into the promised land. और परमेश्वर का जो वाचा बांधी गई जो देश में लोग जो प्रवेश किया, केवल लेवी गोत्र को ही कहा गया कि तुम्हारा कोई अपना भूमि नहीं होगा। All right, that is why they were supposed to be supported by the other 11 tribes. और 11 जो गोत्र लोग हैं वो लोग ये जो लेवी गोत्र को लोग मदद करना चाहिए। So the first tithing is 10% of the produce of the land has to go to the Levites for their ministerial priestly work that they have been called to do. और जो भूमि का उपज में से जो कुछ भी जो आएगा उसमें से 10 भाग लेवी गोत्र को दिया जाएगा, क्योंकि वो लोग लेवी गोत्र का लोग परमेश्वर का मंदिर में परमेश्वर का सेवा करते हैं, वो लोग को दिया जाना है। The second kind of tithing is additional 10% to support the big 3 feasts that they were supposed to do annually. और उसके बाद
और एक है जो दशमांश देना चाहिए 10 भाग, उसमें से 3 जो त्योहार है, पर्व हुआ करता था इस्राएल लोगों का, इसीलिए और 10 भाग उन लोग को देना चाहिए। All right. And the third thing is 10% had to be given to support the poor once in 3 years. और उन लोगों का उपज में से जो कुछ भी आता है इस्राएल लोगों को 10 भाग गरीबों को देना है। All right. So overall, if you see, the children of Israel were supposed to give 23% annually out of what they produce or what they have to the Lord. This is the basic principle God had laid down through Moses. और मूसा के द्वारा परमेश्वर जो दिया हुआ व्यवस्था के अनुसार कम से कम 23% व 30% उन लोग परमेश्वर का महिमा के लिए वो लोग देना चाहिए। And so when these people, the Judeans, failed to do that, they were robbing of God. और इसीलिए ये लोग ये सारे जो दशमांश परमेश्वर का भंडार में नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए परमेश्वर कह रहे हैं तुम मेरा भंडार को चोरी कर रहे हो। And this is why Malachi was accusing them and telling them, this is the word of the Lord, you are robbing me of what you're supposed to give me. और परमेश्वर यहोवा ये कहता है तुम मेरे भंडार को तुम चोरी करते हो, बोल के परमेश्वर मलाकी के द्वारा बता रहे हैं। The meaning of it is that the children of Israel or the Judeans were holding back from what God had said, you have to give to me. और जो परमेश्वर को देना चाहिए वो परमेश्वर को नहीं देकर वो अपने आप को पास रख लेते हैं। And now, on account of that, you know what the result is? और उसका विपरीत में क्या उसका प्रत्युत्तर क्या मिलता है मालूम है आपको? The land was under a curse. और वो भूमि श्रापित भूमि हो गया। All right, shall we read the verses 9, 10 and 11 of Malachi 3? 9, अच्छा 10, 9, 11. 10, 11 कोई भाई पढ़ेंगे जल्दी? तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। All right. Now in verse 11, the insects and disease that is mentioned is some kind of a crop destroying disease which the Lord is mentioning there. और यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कुछ ऐसा जो कीटनाशक है जो फसल को नष्ट कर देता है। That's right. And that was leading to famine. If the crops are destroyed, automatically the people of the land will be led to famine. और अगर ये जो उनका जो फसल को अगर कीटनाशक जो कीड़े मकोड़े अगर उसको खा के नष्ट कर देते हैं, वहां पे दुर्भिक्ष आने का संभावना है। Why was this happening? क्यों ये सब कुछ हो रहा था? Because they had not given to God what they were supposed to give. परमेश्वर को वो लोग जो देना चाहिए था वो लोग नहीं दे रहे हैं। Now, on account of this, the land was dry. The land was under a famine. Did you hear me? और वो लोग जो परमेश्वर के लिए जो देना चाहिए था इसीलिए वो लोग नहीं दे रहे थे, इसीलिए वो जगह सूखा पड़ा हुआ है और वहां पे एक श्राप का अवस्था आया है। And also in chapter 2, we read about this earlier. The priests were not doing their job. What they're supposed to do, they could not do. और याजक लोग जो कुछ भी परमेश्वर के लिए करना चाहिए था परमेश्वर का मंदिर में, वो लोग नहीं कर रहे हैं। So you see what the lack of offering was rendering. What are the results of lack of offering is? It was affecting the worship, it was affecting the priest, it was affecting the poor. ये लोग दशमांश नहीं दे रहे थे, इसीलिए खासकर से जो याजक लोगों का भी ये अफेक्ट हो रहा था और जो त्योहार जो उनका जो त्योहार का ऊपर भी अफेक्ट हो रहा था और गरीबों का भी ऊपर अफेक्ट हो रहा था। Every area in the life of God's children was affected because they did not give to God what they're supposed to give. और प्रियो
जो परमेश्वर का लोग जो कुछ भी परमेश्वर को देना चाहिए था वो जब नहीं दिया, परमेश्वर का सेवा में बहुत बाधा हो रहा था। That is why we read in the first two chapters that they did not give to God the respect that they need to give through their worship. It was a very casual way of doing it. और ये बहुत बहुत एक साधारण रीति से वो लोग कर रहे थे। जितना परमेश्वर को आदर सम्मान देना चाहिए था वो लोग नहीं दे रहे थे। Brothers and sisters, we must understand that what stopped them from giving to the Lord. जो परमेश्वर को जो देना चाहिए था प्रियो, कौन सा चीज है उनको परमेश्वर को देने में बाधा हो The रहा था? main thing is that they did not trust God that He will replenish or He will give them what they want so that they can give. They did not trust that. और वो लोग परमेश्वर को पर भरोसा नहीं किया प्रियो। जो परमेश्वर को देना चाहिए तो नो नहीं दे रहे थे। वो लोग जो अगर देंगे परमेश्वर को भरपूरी करेंगे, बल्कि उनका पर भरोसा परमेश्वर को पर नहीं हो रहा था। That is right. Beautifully you said that. They did not realize God has an abundant generosity towards His people. परमेश्वर उसका लोगों का प्रति भरपूरी दयालु परमेश्वर देंगे। But that is why God calls them to repent. इसीलिए परमेश्वर कह रहे हैं मन फिराओ। All right. And again, in verses 10 to 12 that we read just now, we also find that God is asking them to repent, that He is a God of prosperity. He can take care of their well-being. He's reminding them, repent, and your well-being is taken care by me. और परमेश्वर कहते हैं कि तुम अगर मन फिराओगे, तुम्हारा सब कुछ का ध्यान मैं रख लूंगा। That is what we read in verse 10. और हम लोग 10 पद में वही पद पढ़ते हैं। When we heed to God's word, जब हम लोग परमेश्वर का वचन को ध्यान देंगे, when we faithfully submit ourselves to God's word, जब हम लोग परमेश्वर का वचन को विश्वास योग्यता के साथ हम when लोग we उसको समर्पण करेंगे, ध्यान yeah, देंगे, when we trust in God, जब हम लोग परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, then you can see the results as we read in verse 10. और जैसा हम लोग 10 पद में पढ़ते हैं, उसका उत्तर हम लोग को मिलता है। So he's calling the Judeans, his chosen ones, and said, trust in me. You bring and give it to me, and then you see how you're going to be blessed. परमेश्वर कहते हैं तुम लोग मेरा पर भरोसा रख करके परमेश्वर के लिए दिया करो। तुम भरोसा करके देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे। He's telling them that I am more faithful than you. I am faithful always. So trust in me. That is what he's saying in verse 10. 10 पद में परमेश्वर कहता है कि मैं बहुत विश्वास योग्य हूँ, तुम मुझे देख करके देखो। So how does this apply to us, brothers and sisters, for today? How does it apply for today? प्रिय भाई और बहनों, ये हमारा जीवन में किस प्रकार से उसका जो प्रत्युत्तर आ रहा है, हम लोग का जीवन में कैसा वो प्रायोगिक जीवन में आ सकता है? Yeah, on one side, the Lord is speaking to the Judeans through Malachi. एक साइड में परमेश्वर जो यहूदा का जो लोगों को कह रहे हैं, Now today he's speaking to you and me through the book of Malachi. और आज परमेश्वर आपको और मुझे मलाकी का पुस्तक से बात करते हैं। So what do we understand about tithes and offerings? क्या हम लोग किस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो दान परमेश्वर के लिए जो देना है, परमेश्वर का भवन में किस प्रकार से जो भेंट के लिए कैसे हम देना चाहिए? Now let us see what Apostle Paul says. आइए हम लोग पौलुस हमको किस प्रकार का ये दान का बारे में कहते हैं। 2 Corinthians chapter 8 and verse 7. दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय 7 verse 7. 7 पद। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय 7 पद। सो जैसे हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सर्व प्रकार के यत्न में और उससे प्रेम में जो हम से रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। You see, the last portion of that verse says, I want you to excel also in this gracious act of giving. और आखिरी पद में हम लोग पढ़ते हैं कि वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। On the first portion, he's saying, you're doing extremely well in your faith, in the gifted speakers you have, in your knowledge, in your enthusiasm, in your love.
but he's also encouraging them and saying that you also must be gracious in your giving. और पौलुस कहते हैं विश्वास में, वचन में, ज्ञान में और सब प्रकार के यत्न में तुम लोग बहुत अच्छी रीति से बढ़ते हो, लेकिन उससे बहुत अच्छी बात है, परंतु और बताते हैं वैसा ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। There is no 10% that is mentioned here. और यहाँ पे 10 जो दशमांश के बारे में 10 भाग ही देना बल्कि नहीं बताया गया है, But here it is mentioned the gracious act of giving. और दयालु हृदय के साथ और दान देना है। Why is it called gracious act of giving? और यहाँ पे क्यों बताया गया कि दयालु का हृदय के साथ बड़े दिलदार होकर के देना बोल के? Listen to me carefully. It's called gracious because we have the Lord Jesus Christ himself who has been graciously given to us. और क्योंकि इसीलिए दयालु बोल के बताया गया, अनुग्रह का साथ देना बोल के इसीलिए बताया गया है कि क्योंकि हमारा परमेश्वर भी हमारा वो दयालु और अनुग्रहकारी है, इसीलिए हम लोग भी दया के साथ देना चाहिए। The Judeans or God's chosen people never had the Christ that was given to them. और जो यहूदिया लोगों को बाप इस्राएल लोगों को परमेश्वर दया के साथ नहीं दिया गया है। But to us as the New Testament believers, God gave Jesus Christ itself to us. पिता परमेश्वर ने पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को दया के साथ हम नया विश्वासियों को दिया है। And when the Lord left us and went, who has come to stay with us? The Holy Spirit. जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमको छोड़ के गया, कौन हमको मदद करने के लिए आया? पवित्र आत्मा। This makes us greater than the children of Israel, is it not? और इस्राएल लोगों को जितना परमेश्वर ने दिया उससे बढ़ करके नया नियम विश्वासियों को सब कुछ परमेश्वर ने दे दिया। You see, God's generosity is so much greater than the children of Israel that we are enjoying today, that full life of Christ through the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का संपूर्णता हमारा जीवन में जो पास करते हैं, हम परमेश्वर का जो दयालुपन और अनुग्रहता हम भरपूरी के साथ नया नियम विश्वास हम अनुभव करते हैं। That is why, brothers and sisters, our tithe to the Lord has to be given generously, because that is so much that the Lord has blessed us. प्रिय भाई और बहनों, हमारा जो दशमांश है बहुत दया के साथ, दयालु हृदय के साथ परमेश्वर का सेवा में देना चाहिए। We should not be bitter when it comes to giving to the Lord. जब हम लोग परमेश्वर को देने का समय आता है, हम लोग कड़वा हृदय के साथ नहीं देना चाहिए। Sometimes we have this fear, I don't have anything, I don't have much. If I give it to the Lord, how am I going to be taken care? Sometimes such kind of fears cross our mind. कभी कभी हमारा मन में ये डाउट आ जाता है, अगर मैं ये दे दूं तो मेरा क्या होगा, कैसा चलेगा, इस प्रकार का डाउट हमारा मन में आ जाता है। This is the doubt which the people of the Judeans in Malachi's time had it. और ये जो डाउट है मलाकी का समय में यहूदा का लोगों को भी था। And you know what the result of that was? They had not improved, they had not flourished, they were living in poverty or an impoverished state. और वो लोग ऐसा परिस्थिति में इस्राएल लोग थे कि यहूदा का जो पहाड़ी का लोग थे कि वो लोग गरीब अवस्था में हो गया, जितना परमेश्वर को उनको देना चाहिए था वो लोग परमेश्वर वहां पे जो नहीं दिया, इसीलिए वो लोग इस प्रकार परिस्थिति में। And so, brothers and sisters, for us, Malachi chapter 3 and verse 10 is very important. और मलाकी 3 अध्याय 10 पद बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है भाई बहनों। It is not only important for the Judean children or God's chosen children. केवल ये यहूदी लोगों का जो परमेश्वर का चुने हुए लोगों के लिए नहीं, हमारे लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। Yes, Malachi 3:10 is important to us. ये हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मलाकी 3 अध्याय 10 पद। Because of God giving Christ to us and because the Holy Spirit that is within us, we have to give more than 10%. There's no 10% that is mentioned there. It is understood we have to give more than that. और परमेश्वर ने पुत्र को दिया, पवित्र आत्मा को दिया, इसलिए परमेश्वर अति दयालु नया नियम विश्वासियों के लिए है। इसलिए हम लोग 10 भाग, 20 भाग, 30 भाग नहीं, हम लोग परमेश्वर को जितना हो सके
हम परमेश्वर के लिए देना चाहिए। All right, now we'll move to the last portion. We'll move to another portion in the same chapter from verses 16 to 18. अभी हम लोग 16 से लेकर के 18 पद तक हम लोग आगे और देखते हैं। There we find that what are the kind of people, what are the type of people God wants us to be. और परमेश्वर किस प्रकार का लोग हम होना चाहिए, हम लोग 16 से लेकर 18 पद तक पढ़ते हैं। The Lord was speaking to the Judeans and saying, this is how you have to be. और परमेश्वर ने यहूदा लोगों को कहते हैं तुम लोग इस प्रकार का लोग होना चाहिए। And similarly, we will take our lessons, as much as we took our lessons from tithing and giving, we will take our lessons now for the remaining time as to what kind of people do we need to be. हम लोग केवल दशमांश के बारे में देखा और बलिदान के बारे में सोचा। हम लोग भी हमारा जो जीवन में किस प्रकार से परमेश्वर के लिए जीना चाहिए, किस प्रकार लोग होना चाहिए, हम लोग 16 से 18 पद तक पढ़ते हैं। All right, let's read verse 16, Malachi 3, verse 16. आइए हम लोग 16 अध्याय 16 पद पढ़ते हैं। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। All right. Now, the first portion of verse 16 says, then those who feared the Lord. और पहला भाग में हम लोग पढ़ते हैं जो यहोवा को भय मानने वाले लोग। All right. Here it mentions we are to fear the Lord. We have to fear the Lord. और पहली भाग हम लोग पढ़ते हैं हम यहोवा परमेश्वर के प्रभु को हम लोग भय मानना चाहिए। Fear the Lord is not trembling, not shivering. That's not the kind of fear that we need to have. और हम लोग परमेश्वर को भय मानना वाला व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। It's not that kind of fear because I'm not believing him, because I'm disobedient to him. The children normally fear and tremble when they disobey their parents. They've done something wrong. It's not that kind of fear that is referred to here. जो माता पिता को अनाज्ञाकारी बच्चे लोग वो लोग डरते हैं और वो लोग डर करके वो लोग कांपते रहते हैं, उस प्रकार का भय मानने के लिए परमेश्वर हमको नहीं कह रही यहाँ पे। All right. Now this is a relationship between God and man. और यहाँ पे परमेश्वर मनुष्य का संबंध के बारे में बताया गया है। All right. And so the Lord is very serious about his relationship, how he considers them and how they have to think of him. और परमेश्वर वो अपना लोगों के बारे में किस प्रकार का सोचते हैं और वो जो विश्वासी लोग परमेश्वर का लोग परमेश्वर के बारे में कैसा सोचना चाहिए, यहाँ पे ये बात हम लोग पढ़ते हैं। All right. Now to help us understand this, let's read verses 13, 14 and 15 of the same chapter. और 13 से लेके 15 पद उसका विवरण विस्तारित से हम लोग देखते हैं। When you read verses 13, 14 and 15, understand the type of people that is mentioned there. और यहाँ पे 13, 14, 15 हम लोग देखते हैं किस प्रकार का लोग यहाँ पे है वो हम लोग देखते हैं। Let's read that. आइए हम लोग 13, 14, 15 पढ़ेंगे। यहोवा यह कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही हैं, परंतु तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है। तुमने कहा है परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं की यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले हैं, इससे क्या लाभ हुआ। अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं, क्योंकि दुराचारी तो सफल न बन गए हैं, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए हैं। All right. You see how the people are responding to God. You see the condition of the people in these verses 14 and 15. और 14 और 15 लोगों का परिस्थिति का हम लोग देखते हैं। The people are asking us, what is the use? People are saying, what is the use of serving God? और लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर का सेवा क्या फायदा हो रहा है। Why? What have we gained by obeying the Lord? परमेश्वर का व्यवस्था को मान करके हमको क्या फायदा होने वाला है। And they're also saying, what have we gained by saying sorry for our sins, for repenting for our sins? और हम लोग हमारा पाप को क्षमा मांग करके हमको क्या फायदा होने वाला है। You see the condition of these people, they are hard-hearted people. वो उनका हृदय का कठोरता को देख लीजिएगा।
These are people who are rich in evil things. और वो लोग बहुत धनी तो है, लेकिन वो लोग दुष्ट लोग हैं। You know, these are such kind of people who are challenging God to punish them, and yet nothing is happening to them. और वो लोग परमेश्वर को चैलेंज करके कह रहे हैं कि आप हमको दंड देकर तो देखिएगा, हमको कुछ भी नहीं हो रहा है। And against these kind of people is what God is saying, that you have to fear. He talks about those who fear the Lord, which means obeying Him, being faithful to Him, doing all that He said. That is the understanding of the word fear the Lord. और यहाँ पे वहां पे ये जो 16 पद में पढ़ते हैं कि वो है मतलब जो परमेश्वर को समझता है, परमेश्वर को समझते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, वो लोग परमेश्वर को जो आदर करते हैं, उन लोगों को बताया गया कि परमेश्वर को भय मानने वाले। All right, to understand the word fear, I've listed out 3 words which you see on the screen now. और आप लोगों के सामने जो स्क्रीन में 3 शब्द है, परमेश्वर का भय मानने का मतलब क्या है? Fear God meaning 3 things: esteeming Him, honoring Him, and regarding Him. और परमेश्वर का भय का मानने का मतलब परमेश्वर को आदर करना, परमेश्वर का सम्मान करना, परमेश्वर का सेवा करना है। All right. When you say esteem, when you talk about esteem, normally in wedding cards, when we send a wedding invitation, we say we seek your esteemed presence or your honorable presence. By you coming to the wedding, you are honoring us. That is the meaning. और जो एस्टीम का मतलब ये है कि जो खासकर से शादी का कार्ड वगैरह में अक्सर लिखा जाता है कि आपका जो महत्वपूर्ण समय आपका हम चाहते हैं, वह आपका आदरणीय समय, बहुत आदर आप अगर आ जाएंगे इस शादी में, हम बहुत आदर हम महसूस करेंगे। All right. You see in verse 16, chapter 3, verse 16, read the last portion. It says, and always thought about the honor of His name. और हर बार परमेश्वर 16 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपना नाम को वो आदर चाहते हैं। Yeah, that is esteeming, that is honoring, that is something that leads to fearing God. और जो परमेश्वर को आदर करते हैं, उसका मतलब वो परमेश्वर को भय मानने का और लेके जाता है। Brothers and sisters, our wisdom, the wisdom that we have, even the most brilliant person on the earth, the genius on the earth, can never be compared even to a fraction of God's infinite wisdom. परमेश्वर का जो महान ज्ञान का सामने, महाज्ञान इस संसार का होने के बावजूद, वो थोड़ा सा भी परमेश्वर का ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे। Sometimes you and I act as if we are wiser than God. कभी-कभी हम लोग सोचते हैं, हम लोग परमेश्वर से और ज्यादा ज्ञानी हैं। We should be very, very careful about this, brothers and sisters. प्रिय भाई और बहनों, ये बहुत हम लोग नम्र होना है, बहुत सावधान होना बहुत जरूरी है। Now what I'm going to say, you must listen carefully. बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा मैं जो कहने के जा रहा हूँ। Sometimes we judge His timing. परमेश्वर का समय को भी कभी कभी हम लोग न्यायाधीश होकर के उसको न्याय करते हैं। Sometimes we judge His method of what He's doing. परमेश्वर जिस प्रकार से हमारा जीवन के द्वारा करते हैं, उसका ऊपर भी कभी-कभी हम न्याय करके बैठ जाते हैं। As I teach you the word, I am also a part of this. I also have learned, I also have questioned, but I'm learning. How can we judge God's timing? How can we judge God's method? He's so infinite in His wisdom. वो परमेश्वर इतना महाज्ञानी, अद्भुत ज्ञानी परमेश्वर को एक छोटा मनुष्य उसका योजना को कभी-कभी मैं कैसा उसका प्रश्न उठा सकता हूँ। God, brothers and sisters, remember this carefully. God gives His blessing in the most unthinkable ways. परमेश्वर उसका आशीष है, हमारा समझ से बाहर अपार वो आशीष हमको करता है। I'm saying this once again. God gives His blessings in the most unthinkable ways. और परमेश्वर का जो आशीष हमारा चिंता से अपार वो हमको आशीष देता है। We generally think this is where God is going to bless us. और हम लोग अक्सर सोचते हैं कि इस प्रकार इस रीति से परमेश्वर आशीष करेंगे, ऐसा कभी-कभी हम लोग सोचते हैं। But when God opens His doors of heaven to bless you and me,
It is in the most unthinkable way. Has it not been? It's been my experience. I'm sure it has been your experience also. और ये मेरा अनुभव ही है, आपका भी अनुभव हो सकता है। जब परमेश्वर उसका स्वर्ग का द्वार को खोल के आशीष करता है, हमारा चिंता से पार हो जाता है। And remember, God does this to those who fear him. और परमेश्वर को जो भय मानते हैं, परमेश्वर उन लोगों के लिए ही करते हैं। Now, the fear meaning those who come into the Lord, who respect him, who honor him, who esteem him, give him all the glory and honor that needs to be given. They are called people who fear God. और जो परमेश्वर को सम्मान करते हैं, जो परमेश्वर को सेवा करते हैं, जो परमेश्वर को आदर करते हैं, उन लोगों को कहा गया है, ये लोग परमेश्वर को भय मानने वाले लोग। All right, let's read verse 17 to understand that word serving that we have seen, that we see on the screen. और 17 पद हम लोग आइए पढ़ते हैं और सेवा का बारे में हम लोग समझेंगे। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वर्ण में निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वालों पुत्र से करे। Puttar se kare. The last portion of that verse is very, very important. I will spare them as a father spares an obedient child. और जैसा कोई अपने सेवा करने वाला पुत्र को करता है, वैसा भी मैं भी उन लोगों को कोमलता के साथ व्यवहार करूंगा। Brothers and sisters, we have to be like a son to a father with our God. और एक पिता पुत्र का जिस प्रकार से जाता है, प्रिय भाई और बहनों, हमारा पिता के पास भी हम लोग ऐसा जाना चाहिए। What do these people say in verse 14? We read it earlier. We read it once again. What did he say in verse 14? What do the people say in verse 14? 14 पद में ये लोग इस्राएल लोग क्या कहते हैं, जरा पढ़िएगा 14 पद। तुमने कहा है परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं की यहोवा के डर के मारे शौक का पहनावा पहने हुए चले हैं, इससे क्या लाभ हुआ? Okay, the Lord is speaking to us and bringing the mindset of God and the mindset of the people here. और यहाँ पे देखते हैं कि लोगों का जो विचार और परमेश्वर का विचार, परमेश्वर लोगों का जो विचारधारा किस प्रकार है परमेश्वर का प्रति। When we talk about serving, God has something else in mind, whereas man has something else in mind. परमेश्वर का सेवा करना मतलब मनुष्य का मन में एक प्रकार का विचार है कि किस प्रकार से सेवा करना, लेकिन परमेश्वर का मन में और कुछ विचार है। What is the difference? देखिएगा दोनों का विचारधारा का भिन्नता कैसा है। The difference is between the service of a son and the service of a slave. और एक पुत्र का पिता को किस प्रकार से सेवा कर सकता है और एक दास पिता को कैसे सेवा कर सकता है। You remember the parable which we read in Luke chapter 15 about the prodigal son? और हम लोग जानते हैं कि एक जो खोया हुआ पुत्र के बारे में जो 15 अध्याय लूका लिखे सुसमाचार में पढ़ते हैं। The younger brother, he had the mindset of a son. He had the mindset of a son. और जो छोटा लड़का है, एक बेटा का जो स्वरूप है, He was broken. वो टूट गया अपने आप को, He humbled himself. अपने आप को नम्र किया। He desired to serve the father. वो अपने आप को निर्णय ले लिया कि मैं जाके पिता को सेवा करूंगा। And he wanted to be at home with his father and enjoy the greatest blessing in the world. और पिता के पास जाके रहूंगा और सारे जो संसार का सारे उपभोग पिता के पास है वो भी मैं जाके अनुभव करूंगा। Because the youngest son, when he was serving the pigs, eating the food of the pigs, he was thinking, oh, if only I was a servant in the house of my father, I would enjoy everything there, is it not? और छोटा लड़का जब वो जो सूअर का खाना खा रहा था, वहां पे वो अपने आप को मन फिराव करके सोचा कि मेरा पिता का घर पे जा करके एक दास भी मैं अगर हो जाऊं, इतना काफी है। All right. But what did the elder brother think? The elder brother's got the mindset of a slave. और एक जो पिता का जो बड़ा लड़का का विचार में क्या है, केवल एक दास का विचार उसका मन में। He says, I have worked harder than my brother. और मेरा छोटा भाई से बहुत मेहनत मैंने किया है। I deserve a blessing. और मेरा पिता का सारे आशीष मैं पाने का लायक हूँ। I have been with you always. मेरा पिता का साथ में हर सर्वदा में हूँ। I am better than my younger brother in all ways. और मेरा छोटा भाई से मैं उत्तम हूँ। And so I deserve all the blessing. और ये सारे आशीष से
जो पिता का है वो मैं पाने का योग्य हूँ। Oh, the mentality of the slave was with the people of the Judeans, and God was saying, you should not have that mentality. You should have the mentality of the son to a father. और एक पिता को विचार पिता का एक पुत्र का विचार होना चाहिए, जो कि पिता को किस प्रकार से सेवा करना, एक दास का विचार नहीं होना चाहिए। A servant always does certain things for a coolie, for a remuneration or something to be got because he's doing something. और वो एक दास का विचार ये है कि वो एक दास है, इसलिए उसको कुछ करना है। But the Lord is treating his servants as his own children, his own son. Everything that he has belongs to his children, is it not? और जो कुछ भी है वो दास लोगों का व्यवहार कर परमेश्वर इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, पुत्र जैसा, ये सब कुछ तुम्हारा ही है। Brothers and sisters, on the slide that you see next, the benefits of being the son of God or the children of God is what I've shown you there. और हम लोग जो आखिरी जो स्लाइड हम लोग देख रहे हैं कि एक पुत्र होने का फायदा क्या है। All right. The son in the house of a father has total security. एक पुत्र एक पिता का घर पे पूरा पूरा सुरक्षित है, He has food on the table. और उसका भोजन टेबल के सामने है, He can eat whatever he wants. It is all there on the table. और पिता का घर पे पुत्र का सारे अधिकार है, जो कुछ भी He, टेबल में है वो खाने का उसका लायक है, वो योग्य है। yeah, he has rest, he has love, he has education, he has fame, he has glory. Everything of the father belongs to him. और पिता का जो भी है, पुत्र का सारे अधिकार है, वो रेस्ट कर सकता है, वो आराम कर सकता है, वो प्रेम कर सकता है, वो शिक्षा पा सकता है, वो जो कुछ भी उसका है पिता का, वो सारे उपभोग वो कर सकता है। This is what draws a son to the father. और ये पुत्र पिता का और वो खींच के लेके जाता So the Lord was telling the Judeans through Malachi that you are not a slave. I'm treating you like a father is to a son. और यूदा को परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको दास का स्वरूप जैसे व्यवहार नहीं करता हूँ, तुम मेरे बेटे हो। And so the message to you and me today, brothers and sisters, is we are not slaves. We are his children. We are his sons in the Lord. And every blessing which God has of him, it belongs to us. और परमेश्वर का पास जो कुछ भी है, हम उसका दास नहीं है, उसका पुत्र पुत्रियां हैं, इसलिए सारे आशीष जो पिता का है वो हमारा है। All that we need to do is to fear this God. और केवल हमको इतना करना है, परमेश्वर को भय मानना है, We have to honor his name. परमेश्वर का नाम को हम आदर करना है। We have to serve him, or we have to offer our services to him like a son and not as a slave. और पुत्र जिस प्रकार का पिता को आदर करता है, हम लोग इस प्रकार से पिता, हमारा स्वर्गीय पिता को आदर करना चाहिए। And this is the message that the Lord was giving his chosen ones through Malachi. और मलाकी के द्वारा परमेश्वर का जो चुने हुए लोगों को परमेश्वर ने ये संदेश देते हैं। All right, I will stop here, and I thank God for this privilege he gave me to share the word. I hope this word has been useful.